नमस्ते। आप सबका स्वागत है चित्त की बात आरती नागपाल के साथ। मेरे पॉडकास्ट का एक ही एजेंडा है कि रियल लाइफ हीरो आपकी ज़िंदगी में आए और आपको हीरो बना दे। ऐसा परिवर्तन हो आपके चित्त का, ताकि आप इतने सुंदर इंसान बन जाएं जो आपके आसपास के जीवन को, आपके आसपास के सोसाइटी को, स्टेट को, देश को सुंदर बना दे। You glow, you shine, you bring your internal divinity out. Become the light and make everybody happy with your light so that they become light. I have one beautiful, super talented, and very close to my heart, my dear friend, Argo. Yes. Hi, Aarti. I honestly pronounce. We have a issue because the pronunciation of my name is very, very, issue based. Yeah. It's actually Orgo. Orgo. Yeah. So that's the way it is. But yeah, you can call me anything that you like. It's completely fine. Okay. So here is my friend who is a writer, director. He does voiceover also, and he is strategist. But I would want you to elaborate. आप अगर उस चीज को, जो आपका इंट्रोडक्शन है, आप इतने टैलेंटेड हैं कि मैं उनको ऐसे लिमिटेड फ्रेम में फिक्स नहीं करना चाहूंगी. ही इज टू लिमिटलेस इन वास्ट. एंड वन मोर एड ऑन फेदर that he is my Maitri Bodh Parivar friend, my dearest family. I think that's most important. Thank you. Welcome. Thank you so much, Aarti ji. Yeah. Really appreciate. So yeah, I mean, I think the last introduction that you gave, Maitri Bodh Parivar, Yeah. that to me, according to the largest scheme of things at this point, Yeah. is the most important introduction. Yeah. Rest as life happened, we all have our own, ways and means to earn our living. So as in when whatever suits your talent, you devise it. Yeah. So yeah, in that sense, I would say I'm a creative strategist. Yeah. For- Creative strategist. for multiple brands. So there in advertising, there are two kinds of operation. One is above the line and one is below the line. Yeah. So I've managed both the portfolios in advertising and marketing. Alongside that, I write. I am a filmmaker, a writer, filmmaker, and I've done a lot of documentaries over last 20 odd years now. I think 2 decades almost. So yeah, I mean it's a mouthful, but as I said, the biggest introduction is the fact that I'm a part of Maitri Bodh Parivar. Yes. Which is where I think everything changes, Yeah. Eventually we all Yeah. become different. So We all that's are individual light merging into one divinity. yeah. One light. So here you are. You're an actress. You've done so many acclaimed films. You have been such a amazing dancer, performer, everything. But the introduction that you at this point, I'm sure, is most precious. Yeah. Is Maitri Bodh Parivar. So Yes. that is surely our identity. Yes. For Yes. very, very divine reasons. Yes. Yes, it's beautiful connection and beautiful family feeling. Even though, Orgo, I have been like talking to you. मैं आपसे इतने समय से बात कर रही हूँ. जी. इतनी बार हम मिले हैं. इतने सारे बोध हमने साथ में किए हैं. बोध में जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जब आप मैत्री बोध परिवार के सदस्य बन जाएंगे और जब हम आपको मैत्रीय दादा श्री जी के बारे में बताएंगे, तब आपको पता चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं. मेरा जो पॉडकास्ट का नाम है चित्त की बात आरती नागपाल के साथ, और यहाँ पर शुरुआत चित्त शुद्धि से होती है. है ना? सो दैट इज देयर. हम वहां पर आएंगे बाद में. बिल्कुल. पर अभी हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं. जी. हमने बात की है पर हमने अपने एक दूसरे को सुना नहीं. तो मेरा ये पॉडकास्ट आपके साथ करने का मुद्दा ये था कि आप कौन हैं. Who is Orgo?
Okay. Where does he come from? And what does he intend to do? We will go one after another. Sure. But first is, who is Orgo? If I would like to tell you in one word, Aarti ji, I think the word that comes to my mouth is that I'm a traveler. A traveler who has always been searching for stories. Story that begins from understanding yourself is also a story. When you want to know, ये जो आपने सवाल पूछा, आप जी। कौन है, जी। ये भी एक कहानी है ना. जी तो आप पूछ रही हैं क्योंकि आपको उस कहानी की तलाश है. जी सो हर इंसान इंक्लूडिंग मी, हम सब सबसे पहले बहुत सारी कहानियों के तलाश में होते हैं फ्रॉम द टाइम यू आर बोर्न. या पहले बहुत छोटी छोटी क्यूरोसिटीज होती है और क्यूरोसिटीज बढ़ जाती हैं. हम बड़ी चीज़ों के खोज में होते हैं. फिर हमको फेमस बनना होता है, हमको पैसे कमाने होते हैं, तो हम उस कहानी की तलाश में होते हैं कि कैसे कमाएं. फिर हम अपने कामयाबी की कगार पे आते हैं, हमें समझ आता है, तो हम तब जानना चाहते हैं कि कामयाबी कैसी होती है, उसकी कहानी. और एट द एंड ऑफ और एट द मिड ऑफ इट सडनली वी आस्क आवरसेल्व्स, मैं कौन हूँ. सो दिस क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड is something that I'm asking myself, and that is my biggest search at this point of time. Ki, who are you? Till now, I can say I've been a traveler. I have been a dreamer who has had a very interesting life because of the fact that it has combined so many different facets of creative work. Been extremely fortunate to have a family in which creativity was appreciated, even from I mean, of course, I'm a 70s and 80s kid. I'm actually an 80s kid to be more, So during that time, though a lot of restrictions were there in our households, but I was always given an opportunity to actually do what I wish to do. So it started from there, and then eventually, as things passed, I was always in search of some story. First one was reading a lot of stories. When you read that story, you travel to that particular world. You imagine, yourself in that land. You really want to Fairy explore. world. Yes, Yeah, because yeah. we all are Yeah. from limited resources. We are not Yeah. people who could explore world at a small age. Yes, So उस ज़माने में किताबों के ज़रिए या हमारे कहानियों के ज़रिए हम उस दुनिया में पहुंच जाते थे. सही बात. तो वो पहुंचते पहुंचते कभी लगा मुझे भी कुछ बनाना है, मुझे भी कुछ सोचना है, मुझे भी अपनी इमेजिनेशन शेयर करनी है. वहाँ से कहीं ना कहीं आर्ट आया. आई यूज्ड टू बी अ पेंटर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. आई हैव डन माई इंडियन एंड यूरोपियन आर्ट का मैंने कोर्स किया था उस ज़माने में. दोज डेज दिल्ली, मैं दिल्ली का हूँ, परवरिश वहीं की है. दिल्ली को आप सब कहाँ लोग से हैं? दिल्ली से हैं? दिल्ली से हूँ मैं. सो हाँ, ये सवाल, ये जो आपकी हंसी है, ये बहुत कुछ कहती है, पर हाँ, मैं दिल्ली का हूँ. लेकिन एक बहुत अलग दिल्ली है. दिल्ली में भी एक अलग दिल्ली है. दिल्ली is layered actually. Very layered. Layered. It's a beautiful layered place. Beautiful layered. So वहाँ पर क्रिएटिविटी, पॉलिटिक्स, आर्ट, एग्जीबिशन, क्राफ्ट, सब कुछ है. जी आर्ट ऑफ इंडिया. एब्सोल्युटली. तो मैं उस फ्लो में आपको बोलूं कि जो दिल्ली में मैं पला बड़ा, वो दिल्ली बहुत मिडिल क्लास थी. वो दिल्ली बहुत जिसे आप कह सकते हो कि सरकारी दफ्तरों का एक पूरा मयार था उस जगह पे. और मैं उन्हीं गवर्नमेंट लोकेलिटीज़ में बड़ा हुआ. तो जिसे हम कहते हैं एब्सोल्युटली डाइवर्स सोसाइटी, जहाँ कल्चरल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ क्रिएटिविटी और आर्ट को बहुत प्यार से संजोया जाता है. उन जगहों पे मेरी थोड़ी बहुत परवरिश हुई. मैं उन जगहों को देख पाया. गर्मी की छुट्टियों में हम लोग नेशनल म्यूजियम जाया करते थे, जो कि अपने आप में एक बहुत सरप्राइजिंग बात है. तो एट अ वेरी स्मॉल एज आई वाज अवेयर अबाउट व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ तांजोर पेंटिंग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्योंकि पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ ले जाते थे. नेशनल म्यूजियम कई बार गए हैं हम लोग. व्हेन आई ग्रू आई हैड इंटरेक्शन विद लॉट ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट्री. I used to sketch a lot of sculptures at a very small age. So yeah, उस ज़माने में
आप कह सकती हैं कि आर्ट के साथ एक बहुत सुंदर, तो वो दिल्ली, उस दिल्ली में आर्ट बहुत सराहा जाता है, ठीक है। ऐसे कर पुरानी आके, दिल्ली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिल छोड़ आए हम पुरानी दिल्ली में। हाँ, पुरानी दिल्ली भी एक बहुत ही मजेदार हाँ, जगह है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। इट्स अ कॉन्कॉक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट कम्युनिटीज। अगर आप चांदनी चौक की गलियों में घूमते हैं तो आपको ना सिर्फ लजीज खाना मिलता है, अरे 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 बट साथ में आपको बड़े बड़े लज्जत भरे लोग मिलते हैं। अरे हाँ, डेफिनेटली। कपड़े, जी जी जी, खाना, जी जी जी। और जिस तरीके से आर्किटेक्चर, बिल्कुल, और जिस तरीके से वहाँ लोगों की बोलचाल है, क्या होता है ना, हम जब भी दिल्ली को देखते हैं वो एक मतलब एक सिनेमा के जो पर्सपेक्टिव है उससे देखते हैं, या तो हम बहुत ही एक वायलेंट साइड दिखाते हैं, या हम बहुत ही पावर ड्रिवन साइड दिखाते, वो है, वो डिनाई नहीं करूँगा। हाँ वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा भी एक तो एयरपोर्ट से उतरते ही आपको ऐसा लगता है जी जी जी, आई हवा ऐसी गर्म। जी जी जी। लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नज़ाकत वाला और बहुत ही आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट्स के साथ एक दिल्ली है। यस यस। जो और एक दिल्ली है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से अलग अलग चीज़ों को एम्ब्रेस करती है। तो उस दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई, फ्रैंकली स्पीकिंग, और उस दिल्ली में मैं पला बड़ा, और बड़ी ही सिंपल स्कूलिंग। और एक बहुत अच्छी बात उस स्कूलिंग में ये थी कि मैं एक बंगाली स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, जबकि दिल्ली में बहुत कम बंगाली स्कूल्स हैं। I mean, though we were, I mean, in a way you can say we are not the majority of the population, but there is a very interesting group of Bengalis who resides in Delhi. हम लोग अपनी भाषा में उसे प्रवासी बंगाली कहते हैं। They belong today to the best of interesting positions because they have got the best of both worlds. They have understood the larger perspective of how to run in a city. At the same time, they've adopted to the cultural consciousness of a so-called East India. Yes. So right from Tagore to M.F. Hussain, right from Sharat Chandra Chatterjee to Premchand, I got engrossed with their work, and of course the contemporary or the English authors. तो ये सब कर आके कॉलेज मैंने किया लिटरेचर में, तो उससे एक बहुत फ़र्क ये पड़ा कि मेरी जो राइटिंग के एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से हुए। Skills. हाँ, और कहीं ना कहीं उन सब का मिशमैश मुझे लगता है मेरे करियर में आया। तो हाँ, उस From there तरीके you से directly jumped into ad world. और गो जी। यस क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हर आर्टिस्ट या जो भी आर्ट से ताल्लुक रखता है, आई एम श्योर इज विद यू, हम सब इनिशियली चाहते हैं क्लासिक आर्ट के साथ जुड़े रहना। हाँ, लेकिन ये जो जालिम समाज है, हाँ, ये इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कुछ बन जाओ। हाँ। सो लाइक एनी टैग लग अदर जाए, कुछ टैग ब्रांड लग बन जाए। जाओ, बस यहाँ पर सो एंड जी सो, जी जी जी, दिस वन इज सो एंड सो, या आगे लग जाए या पीछे लग जाए। एब्सोल्युटली, हाँ, उसके अलावा कुछ उसका एग्जिस्टेंस वैल्यू नहीं करता। नहीं, तो आप कुछ बन जाओ। तो जब वो बन जाओ वाली कहानी हुई, हाँ, तो उस बन जाओ वाली कहानी में मेरे को भी बताया गया कि तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हारी स्टडी जब खत्म हो जाएगा तो तुम्हें अपना घर चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम तुमको बिठा के खिलाने वाले तो है नहीं। हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही है, हर परिवार का होता है। तो तब बड़ा ही एक अजीब सा माहौल था, क्योंकि रियलिटी चेक। हाँ, क्योंकि मेरी स्किल्स ना एक टिपिकल स्किल्स से थोड़ी हटके थी। हाँ, तो जो एक नॉर्मल बच्चे के अंदर कुछ बेसिक स्किल्स होती है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जॉइंट एंट्रेंस, ये सब मेरे से नहीं संभला और नहीं हो पाया। मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि मेरी मैथमेटिक्स इतनी ख़राब थी कि मुझे हर मैथमेटिक्स के एग्जाम से पहले बुखार आ जाता। और ये बात मेरे पेरेंट्स समझे, लेकिन वो भी सोचते थे कि क्या करेगा बड़ा होके। आई यूज्ड टू पेंट वेरी वेल एंड आई यूज्ड टू राइट ओके। सो मुझे लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो आर्टिस्ट कैटेगरी होती है ना, मेरा भी ऐसे ही है मैथ्स के साथ में। ये जो मुझे अकाउंटिंग है, ये मैथ्स है, ये सारी चीजें हैं, ये पैसा बनाना है, ठीक है, पर पैसे को संभालना कैसे वो नहीं पता।
जी 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 और बिल्कुल। क्या करूं कैलकुलेशन करके, कैसे करूं, वो करेक्ट नहीं हो पाता। पैसा तो आज भी नहीं संभल रहा। तो तब की बात तो तब, पैसा तो आज भी फ्रैंकली थोड़ा सा अभी भी अकाउंटिंग में मेरे हाथ कांप जाते हैं, तो मैं अपने अपने अकाउंट्स टीम को बोलता हूँ कि भाई जस्ट होल्ड माई हैंड बिकॉज डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू एनीथिंग। सो हाँ खैर वो सब हुआ। तो कुछ साल ट्रायल एंड एरर बेसिस पे मैंने बैंक में नौकरी भी की। सो जी 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 बिल्कुल। ओह गॉड, हाँ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, या वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। दिस इज वेरी फनी। यस, तो उस ट्रायल एंड एरर बेसिस पे मैंने बैंक में नौकरी की, कस्टमर सर्विस में नौकरी की। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी की मैंने नौकरी, मतलब मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया मेरे बैंकिंग। मैं भी थोड़ा, मुझे भी, क्योंकि उस जमाने में ना करियर क्या है ये डेफिनेट चॉइस हमारे पास अनफॉर्चुनेटली होती नहीं नहीं थी। है। हमारे बच्चों को आज जिस तरीके से हम गाइड करते हैं या जिस तरीके से हम उनको को छोड़ते हैं, क्लैरिटी उनके पास है जी, तो उस जमाने में हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट यही थी कि बेटा बड़ा होके नौकरी करना, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो नौकरी है, आपकी रिक्वायरमेंट करियर नहीं है, सर्वाइवल है। नौकरी नहीं करोगे तो कैसे होगा, बस सर्वाइवल। क्योंकि वो लोग एक पोस्ट वर्ल्ड वॉर इरा से ताल्लुक रखते हैं, उस टाइम पे उनकी पैदाइश है। तो उस पैदाइश के टाइम पे उनके लिए रोज की रोजी रोटी बहुत जरूरी थी। उस जमाने में भारतवर्ष को कहीं और था, आज भारतवर्ष कहीं और है। तो उस वजह से मैंने बैंकिंग की, लेकिन मुझे समझ आ गया 2 साल में ही कि मैं ये नहीं कर सकता, ये दुनिया के लिए या बिकॉज मैं कुछ internal self of mine was appealing to me that this is it. I mean, you cannot continue with this. I was doing very well. In fact, I have many friends today in banking world who are very, very big now, because imagine they have spent almost 20 years इस फील्ड में, वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरे से, और मेरे दोस्त भी उस जमाने में कलीग्स कहते थे कि तू निकल, मतलब तू क्या कर रहा है, you know. So I was like, हाँ. So at one particular point of time, I decided to just give it up all, and lot of convincing were needed to my dad especially, because वो सोच रहे हैं कि ये लड़का बैंक की नौकरी छोड़ के कहाँ जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली ठीक है, सिक्योर ग्राउंड छोड़ के एब्सोल्युटली इवेंचुअली, हाँ। और क्योंकि क्या है ना, ये ऐसी लाइफ स्किल होती हैं जिनके बारे में असल में हमें भी नहीं पता होता कि ये क्या करेगा। A job is given to you basis your qualification. Yeah. You know he scored well, he'll get a job. If you write well, it doesn't mean that you will get a good job. Yeah. At least हमारे ज़माने में. See, one thing about writer, I'm also writer, so I know one thing. Writers are appreciated only when they are successful. Yes. Till that time, they don't exist. They don't exist. They are not respected. They are not well paid. Absolutely. They are just like that. They are just like that. Until and unless जब तक वो अपना लोहा प्रूव नहीं करते हैं ना, yes, तब तक उनकी इज्जत नहीं होती है। जी, और जी, फिर जी. जब वो बन जाते हैं जी, तब फिर लोग पीछे भागते हैं, दुआ सलाम ठोकते हैं, हमको तो पता है, हम नाम नहीं लेंगे, पर वो फिर वो गिने चुने ऐसे मुट्ठी भर ऐसे हो जाते हैं, फिर पूरी दुनिया उनके पीछे भागती है। जी जी जी, एब्सोल्युटली। तो वो है, और वो बहुत हार्ड जर्नी है। हाँ, और देखिए मैं जिस शहर से हूँ, दिल्ली से, वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मेरे सामने शो बिजनेस घूम रहा है। शो बिजनेस में तो हमारे पूरे परिवार जहान में कोई उस कैटेगरी में है नहीं। तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर मैं एक राइटर हूँ तो वो एक तो एक्सप्लोर करना और वो रिस्क ले लेना कि हाँ भाई तुम ये कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, एडवर्टाइजिंग स्टोरी टेलिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरी टेलिंग fiction in general. Yeah. So, और उसमें एक अपनी जर्नी है, मतलब वहाँ पे आपको इनिशियली बहुत ही बेसिक लेवल पे शायद आपको एक एम्प्लॉय ऐड बनाना पड़े या आपको एक वांटेड का ऐड बनाना पड़े, यू नेवर नो। और वही रही मेरी जर्नी इनिशियली। तो मुझे जो एक मेरे दिमाग में जो एक इल्यूजन था कि क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ ब्रांड्स एंड वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ पीपल। Initial days में they were not even looking at me. They were putting me on one side, and which is obvious. Now I realize why. So उस advertising journey में बहुत ही कष्ट के साथ मैंने अपनी initial journey शुरू की, with this understanding कि ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता मैं टिक पाऊंगा. But yeah, fortunately enough, things looked good. And when you are different, you are appreciated. Yeah, in some way it comes to you. It takes time. Yeah, it takes time. It takes a grueling time for you to actually prove your worth. Yes. But when it happens, then it happens. Yeah. So it took me some time.
इट टुक मी एन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, और आपकी क्या फाइनली एबिलिटी है वो बिना काम किए आपको समझ नहीं आता. सो आज तो फ्रैंकली थोड़ा बेटर है, क्योंकि आज एटलीस्ट आपके पास कोर्सेज हैं जो गारंटी करते हैं आपको कि आप ये करो. लेकिन हमारे ज़माने में कोर्सेज बहुत थे, लेकिन बहुत कम थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज थे, और उनका ज्ञात हम जैसों को नहीं था. सो खैर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और आज हाँ आप कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें आई लाइफ में. एडवर्टाइजिंग आया, फिल्म्स आया, फीचर फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिला, राइटिंग का मौका मिला, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का मौका मिला, म्यूज़िक वीडियोस बनाने का मौका मिला. और अभी ठीक है, अभी एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ें हो रही हैं. हमारे फील्ड में कभी चीज़ एंड नहीं होती, वो तो चलती रहती है. जब तक हम हैं, सांसें हैं, तब तक होंगी. लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, learned a lot. I won't say I've done a lot. I've learned a lot. So that's been the journey. Yeah. Nice. आपके जीवन में जिस तरीके से आपका ग्राफ दिख रहा है मुझे, जी. I can ऐसा पिक्चर द लाइफ अप टिल नाउ जैसे आपने एक्सप्रेस की है. जी. ऐसे कोई मोमेंट्स जो आपको एक यादगार लम्हे जो आपको मतलब ट्विस्ट कर दे जीवन में, कि आप इस डगर से जा रहे हो और आपका थोड़ा ट्यूनिंग कर दिया. आई बिलीव इन डिविनिटी अ लॉट. Yes. एंड आई बिलीव कि हमारा एक प्लान होता है और एक भगवान का प्लान होता है. जी बिल्कुल. ठीक है. जी बिल्कुल. हम जब तक हमारे प्लान में ऐसे स्टेडफास्ट रहते हैं कि नहीं यही, तब तक हमको थप्पड़ मारती रहती है जिंदगी. बिल्कुल. हम उठा पटक करते रहते हैं, क्योंकि हम फ्लो को रेजिस्ट कर रहे हैं. जी. हम फ्लो के साथ में हैं कि अगेंस्ट में है, वो तो भगवान ही जाने, पर वो होता है. पर एक बार जब डिविनिटी के प्लान के साथ में हमारा प्लान मर्ज होता है, तो वो फिर जो बनता है ना, वो बहुत सुंदर बनता है. वो फिर आपको लेके जाता है सक्सेस की ओर. जी. तो उसी पर्सपेक्टिव से, उस एंगल से मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कभी कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ये कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे फाइन ट्यूनिंग करके शिफ्ट कर दिया गया, और ये करके वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा कुछ हुआ? मुझे लगता है हर एक स्टेज पे देखिए क्या होता है ना, डिवाइन हमेशा आपके साथ रहते हैं. बिल्कुल शुरुआत से आप तक. उनके फॉर्म्स बदलते हैं, उनके एक्सप्रेशंस बदलते हैं, लेकिन वो रहते हैं. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब मैं बच्चा था और मैं पार्क पे खेल रहा था, झूला झूल रहा था, तो जब मैं झूला से गिरने वाला था तो वो बचाने वाला डिवाइन था, लेकिन मुझे नहीं समझ आया. जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे मार्क्स कम आए तो मुझे लगा कि ये तो डिवाइन मेरे साथ नहीं है. लेकिन असल में वो मार्क्स इसलिए कम आए ताकि मैं उस पथ को ना चुनूं. तो उधर भी एक डिवाइन कहीं था. जब मेरे माँ बाप ने मुझे चांटा लगाया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, तो वो इसलिए लगाया क्योंकि मुझे डिवाइन ने बताया कि तुम अब ये करो. सो हम डिवाइन मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स. इवन हार्डशिप गेट्स मैनिफेस्टेड एज डिवाइन. सो टर्निंग पॉइंट तो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट ना कोई ऐसा मेजर कट नहीं होता. मुझे लगता है दीज आर ऑल इन आवर वेरी वेरी स्मॉल ट्विस्ट, सर्टन चेंज ऑफ थॉट्स, सर्टन थिंग्स व्हिच सडनली, you know, I'll give you an example, Aarti ji. It's very interesting actually. People ask, when was that one feeling where you felt that you want to become this writer director? People might find कि कोई ऐसा moment आया जहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं आपको बताऊँ, एक डार्क कॉर्नर, डिंजी कॉर्नर एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, मेरे एजेंसी का, वहाँ बैठ के जब मैं एक बड़े से डेस्कटॉप पे बैठ के रात के 3 बजे स्क्रिप्ट लिख रहा था, और मुझे स्क्रिप्ट लिखना आ नहीं रहा था, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पे, और मैं आंसू टपका रहा था अपनी आंखों से कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है. और मुझे पता है नेक्स्ट डे का डेडलाइन है और मुझे वो कुछ भी करके करना है. उस 3 बजे के टाइम पे आप बाहर जाते हो, 3, साढ़े 3, 4 बजे के टाइम पे, और सूरज हल्का सा उगता है, आपको कुछ रियलाइज होता है और आप वापस आके उस राइटिंग को कंप्लीट करते हो. मेरे हिसाब से वो एक ट्विस्ट और टर्न है. उस टाइम पे आपके अंदर कुछ बदल गया अचानक से, उस एक रियलाइजेशन से. आपको पता है शायद कि नहीं पता है, 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है. जी जी जी. और उस समय पर आप कुछ भी काम करो, जो अंदर जो दुविधाएं हैं,
जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर आप आंख बंद करके बैठोगे तो आपको नेचुरली सारे रास्ते, सारी खुल डिविनिटी, सब जाएंगे। कुछ दिखेगा। मैं आपके साथ हूँ। तो आप जो ये बोल रहे हो मैं उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ। वाह। सो आप ये सोचें कि कोई मुझे उस जगह से निकाल के धकेल के बाहर ले गया ताकि मैं सूरज को देखूं, उगते हुए सूरज को, और बाहर कुछ मेरे रियलाइजेशंस हुए, मैं वापस आके लिखा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लोगों की आंखों में दिस माइट साउंड कि क्या है ये, बाहर जाके तुम कुछ सोच के वापस आके लिखे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये छोटी बातें बड़ी होती हैं। ऑब्वियसली हमारी जो आंखें हैं, लेंस है, वो हमेशा बड़ी चीजों के बारे में सोचता है, लेकिन हर छोटी और हर उस समय जो चीज बहुत इररिलेवेंट लगता होगा, असल में वो आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। सो ऐसे कई मोमेंट्स आए, बहुत अच्छे आए, बहुत बुरे आए, बहुत हार्ड आए। ऐसा भी एक समय आया जब मुझे लगा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दूसरे दिन मुझे समझ आया कि मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा भी एक टाइम इफ आया। यू कैन एलाबोरेट। Yeah, so I was, not very far enough. So there was a point of time where I felt there was a period of maybe 4 to 5 years, I would say, when I started feeling that everything is in place. You know, my career is in the right space. My life is setting up. My family is all perfect. Wow. You know, I've built myself in a certain manner, so things look very, very shielded. I'm managing to give myself a certain amount of comfort, so that also gives you relaxation. But as I said, divine has different plans for you. In almost 1 year or 2 year, in a course of time, I realized that I basically have nothing. So the relationships that I have created, the resources or the money that I had, everything just suddenly changed hands. Everything I felt was not mine. It was never mine. It was it was always supposed to be something which would tomorrow may have been taken from you. I never realized it. It came in form of losses of different kinds, right from I would say a marital loss to a loss of wealth, loss of opportunity, loss of my parents' lives. I lost them in maybe less than 1 year. So suddenly, when you want to be the most happy, you suddenly have nothing left. So that is a point when you really, really want to question, which you just asked at the beginning of the session, कि who am I? और वो मेरे को भी आया वो थॉट कि मैं कौन हूँ, मैं इतना कुछ करके भी कुछ क्यों नहीं कर पाया. एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई थिंक द रियल You came really out. emerged. Yeah. The false self fell off. Yes, that is the point when I felt a sense of direction. कि ये सब कुछ अन्यथा है, ये कुछ गलत हो रहा है. तब ये नहीं पता था सही क्या है, लेकिन तब इतना पता था कि ये जो अब तक हुआ है इसमें बहुत सारे नुआंसेस गलत है, ये इल्यूजनरी थे, ये मैंने ही क्रिएट किए हैं और ये गलत है. मुझे इनको ठीक करना है, मुझे समझना है कि मैं कौन हूँ. हाँ, मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे पास शायद मेरी एग्जिस्टिंग फैमिली मेरे से दूर हो गई, शायद मेरी मेरी जिस लेवल पे मेरी वेल्थ और अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट है वो शायद थोड़ा अचानक से मुझे एक और मिरर में दिख रहा है, लेकिन मुझे अभी को बदलना है, मुझे वो करना है जो रियल है. और उसके बाद जो हुआ आरती जी, वो बहुत मिरेकलसली डिविनिटी के साथ मेरा परिचय हुआ. और उस डिविनिटी ने मुझे बताया अलग अलग फॉर्म्स में कि हम तो तेरे साथ थे, तू हमारे साथ नहीं था. So that is the point when I realized, and I felt an amazing sense of happiness and unhappiness together. Yes. Sorrow and joy एक साथ जब आता है ना, ये एक बहुत अजीब सी ट्रांजिशन पॉइंट होती है जहाँ बहुत आपको खुशी है और बहुत गम है. Actually, that is the realization point of the inside the Atma we are. Yes. We realize that what all things we are holding on to and what all things we are supposed to let it go. हमारे अंदर जो ये कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर जो बचपन से हमको एक्चुअली इम्बाइब किया जाता है, हमको सिखाया जाता है,
हम होते ऐसे फ्री होते हैं, लिमिटलेस जब पैदा होते हैं, फिर जब बड़े होते हैं तो हमको सिखाया जाता है ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है, ये तेरा घर है, ये तेरी स्कूल है, ये तेरे मित्र हैं, ये तेरा 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 से हम फिर मेरा 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 शुरू करते हैं, क्योंकि हमने तभी कमाया नहीं होता है, हमको दिया जाता है, हम पर थोपा जाता है। फिर हम जब ये सब सीखते हैं तो हमारे जो चित्त के ऊपर सारे इम्प्रेशंस बनते हैं, तो हम वो सारे इम्प्रेशंस को ले लेके एक ऐसी बन जाते हैं ह्यूमन, जिसको हम खुद ही नहीं झेल पाते। बहुत सारी सिचुएशंस में हम अपने आप को ही नहीं झेल पाते कि मैं अभी इसको कैसे हैंडल करूं, ये जो मैं बन गई हूं, ये जो मैंने क्रिएट किया है, इसको मैं हैंडल कैसे करूं और अंडू कैसे करूं। तो अंडू करने के लिए फिर हमारे मैत्रेय दादाश्री जी जैसे डिवाइन दोस्त की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, कि कोई ऐसा दोस्त आए जो हमको सच्चाई का ऐसे टक 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 नॉक मारे। एब्सोल्युटली। और नॉक मार मार के हमारा जो सारा ऊपर का जो सारा ढकोसला जो ढोंग है वो तोड़ दे। जब वो तोड़ देगा तो हम फिर से वही प्यारे से बच्चे, रियल शाइन, रियल लाइट, सुंदर बन जाएंगे। तो देन एवरीथिंग व्हाट विल हैपन विल बी ब्यूटीफुल अराउंड अस। एब्सोल्युटली। सो आई कैन अंडरस्टैंड where it is coming from, who am I? Yeah, and you tend to always feel कि जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मुझे करना है वो मुझे करना है। ये बहुत स्ट्रेसफुल फीलिंग है। Yes. क्योंकि आप नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते आप हैं। नहीं कर सकते हो। नहीं, जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, हम नहीं कर सकते। जब हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं एक्चुअली, तब हम कुछ भी कर सकते। कुछ भी कर सकते। मैं वही मतलब दैट्स द रियलाइजेशन। क्योंकि आपके साथ जो एम्पावरमेंट है वो तभी होगा जब आप बेसिकली सरेंडर कर पाओगे लार्जर कॉज के लिए और एक डिवाइन सेल्फ अपना एस्टैब्लिश करने में। तो वो जब हुआ तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत अलग किस्म का ट्रांजिशन मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी बहन की ज़िंदगी में आया, हम दोनों की ज़िंदगी में आया। हम दोनों ने एक साथ शुरू किया मैत्रेय दादाश्री जी की ये पथ प्रदर्शन। ये जो आप सब में हमारे साथ जुड़े मैत्री बोध परिवार में बहुत अलग अलग किस्म की एक्सपीरियंसेस हुई। और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ से एक और जर्नी शुरू हुआ। इससे पहले जो भी था वो अकम्प्लिशमेंट्स तो थे, उसने सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। शायद वो अंतरात्मा में ऐसे शांति नहीं देते थे। नहीं, एवरी स्टेप पर शांति नहीं मिलती थी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपने ये किया, आई फील नाइस। ये किया, वाओ, ये कंप्लीट, मतलब एवरी सिचुएशन इज होल इन इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। ऐसे नहीं कि यहाँ पर मैं पहुंचूंगी तब मैं सक्सेसफुल होंगी, नहीं। यहाँ पर आज अभी इस वक्त जो हुआ है वो कंप्लीट है। एब्सोल्युटली। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस टाइम पे, इस वक्त, ये पॉडकास्ट में, ये कंप्लीट है जी। ये आपको और मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है। बिल्कुल। और इससे हमारी बातचीत से अगर किसी और का भला होता है, किसी और को इसमें से कुछ मिल जाता है, तो वो सेटिस्फैक्टरी। हाँ, बस इतना धीरे धीरे, छोटा छोटा, है ना। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि आज के डेट में जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से भी मैं काम कर रहा हूँ, जितने दोस्त मेरे बन रहे हैं, जितनी बातें मेरी हो रही हैं, वो मुझे हमेशा लग रहा है कि वो किसी और के अच्छाई के लिए हो रही है, अपने आप से। मैं कोई जबरदस्ती कोशिश नहीं, वो मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है। वो जब बात हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जा रही है जहाँ किसी को अच्छा लगे। ये शायद एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है हमारी जिंदगी में। एब्सोल्युटली। और वो आगे भी मैं तो बाय द ग्रेस ऑफ दादाश्री जी वो आगे होगा ऐसा। क्योंकि एज वी हैव अंडरस्टूड दिस दैट द मोमेंट आई हैव अ पर्पस, I have a very different level of strength. Yes. And that I see happening on a daily basis. Yes. बाकी तो कर्म है और हमें कर्म के साथ जीना है। जो हमारे फ्लॉज हैं वो जरूरी नहीं है कि कल सुबह उठ के सब चले जाएं। नहीं। वो तो थोड़े बहुत कहीं नहीं सबके साथ। लेकिन एक जब आपको पता है कि आई एम एडवांसिंग, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग, दैट फीलिंग इटसेल्फ इज अ वेरी लिबरेटिंग फीलिंग। Totally. So yeah. Who else but you know better than that? है ना?
Orgoji, some landmark projects which audience knows, which people have seen, is done by you. I would like to Yeah. address them. Sure. So, I can't obviously name the brands Why? because Already released brands, so क्या problem है? okay, so there are many companies that I've worked with, and there are many campaigns that I've been a part of. So, if you ask me, I was involved in a lot of promotional films that are done for brands like Tata Motors, Okay. and I've done work for ITC. I have done work for Procter and Gamble. For one campaign of Procter and Gamble, it was a very interesting campaign, which was about the difference between a stubble man and a shaved man. So that sort of created a bit of a certain amount of rage in the people's Yes, hearts. So I had interacted with a campaign of Tata Motors when Akshay Kumar became the brand ambassador. I was a part and parcel of that launch. I've launched many automobile brands across India, different kinds, right from Volkswagen to Tata Motors to Maruti to there are many brands that one has worked with. Had launched a lot of luxury brands in India, right from Louis Vuitton Moet Hennessy, that is. Launched Tag Heuer, and the brand ambassador was Shah Rukh Khan that time. The whole process of that. Yeah. Nice. So in bits and I've worked with parts. Shah Rukh. Yeah. What? I've done film with Shah Rukh. Oh yeah. Oh yes. Of course. Good do. Yeah. Of course, we had discussed this. So you and me have something. We have something in common. I'm sure there are many. I mean, if we start talking, it'll be much more. So that's that. So I've just finished a very interesting travel show with a friend of mine called Sameer Kocher, which we shot in Africa. It was a 4-part travel series that is in Masai Mara. Ooh. That is now in YouTube. Yeah, that is there. That's my favorite destination. Yeah. Travel destination. I'm sure. So that's that. Then, eventually, there are so many campaigns. It's very difficult to name like 1 or 2 or 3 because, in a 22 years career, I have also forgotten what all I've done. At times it becomes very difficult. I can relate to you. कि क्या किया? Because इतने सारे brands के लिए इतने सारा काम किया है और बहुत interesting काम किया है. तो हाँ, उसने of course आपके career को एक certain boost दिया है. Yes. लेकिन अगर मैं experience बहुत सारा अनुभव. जी बिल्कुल. और it added a lot of punchlines to my life. It had added a lot of advertising moments for my life. It had added a lot of interesting memories for my life. But eventually मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि वो सब एक तरफ है. और अब जिस पथ पे हम चल रहे हैं, I've by the way produced 2 feature films also. I produced a Marathi film called Kakand, which is not directed by me, but I produced it. Then there was a Bangla film called Tinanko, which I also produced. So I had a tryst with feature film production as well. And one is looking forward to a lot of interesting projects which are coming, which may come in months to come. One has written a lot of work, which is now, I've written a very interesting docu-series which may see a light of day any moment. It's a very interesting concept that one is trying to pitch in. So I obviously can't disclose the names because right now I understand. Those channels are, they may have a problem. So like that, there are very, very interesting. We are actually in a very interesting space right now. The digital world has moved very beautifully. Yes. Though competition is still there. Yeah. The concept of known faces is still there. Yeah. If you are someone, the recognition becomes much more easy. Faster. If you are somebody whose only talent is the merit, it takes an amount of time. Though, one has crossed a few barriers now. We're standing on a place where maybe I'll see a few things coming up soon. Hopefully by Dada's grace. But that's the journey. Yeah. So many interesting projects. Worked with some amazing celebrities, amazing friends who have been, such great talents. Such beautiful people. Yeah. So had a fab time. Yeah, that's nice. That's beautiful. Yeah. I know you sing too. Oh my God, yes, a bit, yes. Yes, I have heard you, and it was beautiful. I think so. You should little bit do it.
Little. Okay. So, I don't know why, but I'm feeling like singing a song of my mother. My mother used to love this. This is a Bengali song. Okay. Though I normally don't sing Bangla songs. I can feel Bengali language very close to my heart because my mother was born in Kolkata. Okay. I have some internal, जैसे बोलते हैं ना, internal जेनेटिक्स के अंदर जो कनेक्शन है, चित्त के अंदर गहरा कनेक्शन है. जी जी जी. मैंने आज तक कोलकाता नहीं देखा, बट मेरे बहुत सारे बंगाली फ्रेंड्स हैं और मुझे ये भाषा बहुत प्यारी लगती है. अच्छा. और मुझे समझ में भी बहुत कुछ आती है. इवन दो आई हैव नॉट लर्न दिस लैंग्वेज, फिर भी मुझे समझ में आती है. जी, वो तो आप गा सकते हैं बंगाली में. क्या बात है. ये गाना मुझे बहुत प्यारा है बिकॉज एक तो मेरी माँ गाया करती थी और मैंने माँ से ही सीखा है. और I hope she is listening to this from wherever she is. But yeah, I mean, this is, maybe I won't be as good as her, but can I try? I'll just try. Okay. So it goes like this. Ami je ator go ator dani bhora. Ami je ator go ator দানি ভরা আমার এই কাজ হলো যে গন্ধে খুশি করা কে কারে রাগবে বুঝে ফুরালে হায় গন্ধ যে থায় কে কারে রাগবে মনে ফুরালে হায় গন্ধ যে থায় আমি যে জলসা ঘরে বেরোয়ারি ঝাড় আমি যে জলসা ঘরে বেরোয়ারি ঝাড় আমি যে জলসা ঘরে. How beautiful. Thank you so much. Cute, so Thank you so much. nice. The meaning is very, very profound. Yeah. The meaning is Ami je jolsha khore beroari jhad, which means I am a chandelier in a jalsa ghar, which is this huge, place where people hobnob. Nishi phurale ke ho chai na amaye jani go hai. The moment it's morning, nobody cares about the chandelier. So such is life. Yeah. আমি যে আতর গো আতর দানে ভরা আমারই কাজ হলো যে গন্ধে খুশি করা. So I'm a ইত্র. Okay. And till the time I'm there in the bottle, it is active, it is there. The moment the gandho goes away, the perfume goes away, it's just a bottle. So my existence is only till the time the liquid exists. Yeah. So such a beautiful metaphor when it comes to our lives, right? Yeah. जब तक हमारे अंदर एक श्वास है, एक ताकत है, एक एबिलिटी है, एक पावर है, एक प्राण है, तब तक हमें पूजा जाता है. सिर्फ प्राण ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जब तक हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम किसी और को कुछ प्रोवाइड कर पाए, तब तक हमारा एग्जिस्टेंस है. वरना उसके बाद क्या है? नहीं है. Right. तो ये इतना रिलेटेबल मुझे लगता है, तो मैंने बोला चलो आज आपके लिए कुछ ऐसा हो जाए. So nice. It was so beautiful. Thank you so much. Really. Yeah. So full of art and culture. Delhi and Kolkata combination. जी. What a lethal combination it is. Oh my God! Yeah. Don't even ask. I've been living with it. It's quite a क्या बोलते हैं उसको, double life. I must say, because in one moment मैं एकदम हिंदी में एकदम वो वाला लहजा आ जाता है, दिल्ली वाला. And cut to suddenly I'm in a very ये Rocky and Ronnie combination है यहाँ पर. Oh yes. Yeah, you can say that actually. Oh my, I never thought about that. I also just thought about it. It's very interesting. Right Yeah, मेरे दिमाग में mix ऐसे of- ठक करके क्लिक हुआ, बोला अरे ये तो यहाँ पर जीता It's जागता very Rocky running. completely rocking रानी है. Yeah. And I write so much of Hindi now because हमारे एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में आजकल हिंदी की बहुत चलन है. मतलब अंग्रेजी से हमने शुरू किया था. एक जमाने में अंग्रेजी कॉपीराइटिंग वाज बिग. We followed the footsteps of an Alec Padamsee, Garson Yeah. Dicuna, Yeah. and these great Freddie Birdies. Yeah. And now today suddenly it's moved into a Piyush Pandey and all of these people. So Hindi लिखना पड़ता है, हिंदी लिखते हैं हम लोग. तो हाँ, you can say it's a perfect Rocky and Rani combination. Yeah. That's nice. Yeah. Nice. Yeah. Since a long time we've been parts में in
tiny drops में we are talking about spirituality. Yeah. But we have not like completely elaborated it. हमने एकदम उसकी गहराई तक जाकर उसके बारे में बात नहीं की. जी अभी तक हम आपके करियर के बारे में ही बात कर रहे थे. जी. आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या है? It's a very important and a very relevant but a very difficult question actually. Yeah. But let me try and answer it in my own way. Yeah. मुझे लगता है spirituality is basically the true recognition of yourself. अपने आप को जानने की खोज spirituality. और इस खोज में जब आप अलग अलग सवालों के सामने आते हो और उन सवालों के आंसर्स को ढूंढते हुए जो आप करते हो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मेरे लिए मंदिर में जाके फूल चढ़ाना तक सीमित नहीं है या सिर्फ एक मेडिटेटिव प्रोसेस में रहना स्पिरिचुअलिटी नहीं है. मुझे लगता है कि अपने आप से सवाल पूछना और उन सवालों के जवाब ढूंढना भीतर वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. और उसके वो सॉल्यूशंस हैं जो भी आप करना चाहते हो उस प्रैक्टिस में, जहां आप ये जान पाओ. लेकिन सब जान पाना एक बात है, जानने की इंटेंट रखना टू मी स्पिरिचुअलिटी. जहां एक मुझे कहीं से बहुत इंटरेस्टिंग एक बात समझ आई थी कि जब आप ये समझना शुरू कर दोगे कि आपको कुछ नहीं पता, वो स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है. तो मैंने आपको जैसे I don't know is a good space. वेरी गुड स्पेस. बिकॉज अगर आपको पता है तो इतना पता होने के बाद अगर हम इस मिजरेबल लाइफ में जी रहे हैं तो फिर आपको क्या पता है? कुछ नहीं. और अगर आपको नहीं पता और आप इतने ब्लिसफुल स्टेट में हो तो पता होने की जरूरत क्या है? So for me, spirituality is the ability to search and to find your answers. That is the starting. Yeah. And of course, then you go from level A, B, C, D, you want to reach a certain level. जो कि मेरे लिए फिर से जैसे हमारे मैत्रेय दादाश्री जी कहते हैं कि वो भी ज़रूरी नहीं कि आप किसी केव में बैठ जाओ या किसी किसी जिंदगी को एक कहीं आप आइसोलेशन में चले जाओ, वो नहीं है. लेकिन अगर आप इस समाज में रह के, इस समाज के भीतर रह के अगर आपके अंदर आपके अलग अलग प्रतिक्रियाओं को लोगों तक साझा कर पाओ, बता पाओ उनको, और उनसे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाओ तो वो बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत बड़ा काम है. अनएंडिंग काम. तो आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे आप कभी किसी छोटे से बच्चे से मिलते हो और वो आपसे कुछ ऐसा कह देता है जो आपको छू जाता है. आपने शायद कभी ये सोचा भी ना हो, लेकिन वो बच्चे ने वो कह दिया. तो उस बच्चे ने आपको उस दिन अपने स्पिरिचुअल होने का ज्ञात करवाया. तो वो बच्चा इक्वली स्पिरिचुअल है 100%. किसी भी बड़े नामी गिरामी गुरु के सामने. 100%. क्योंकि ये जो, और एक बात जो हम बहुत अच्छी तरह समझे हैं कि आप जो कर रहे हो वो आपसे करवाया जा रहा है, आप कर नहीं रहे हो. तो अगर वो करवाया जा रहा है और अगर आप ये सोचते हो कि कुछ ही लोग वो कर पाएंगे और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी भूल है. गलतफहमी. कर सब रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा. एवरी पर्सन who is supporting you in your life journey is helping you in your spiritual journey. If you have received abuse tomorrow, it is also a service to your spirituality because it has changed you. अगर सब कुछ बहुत अच्छा चलता तो आप क्यों स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं? अपने आप को जानने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं पड़ती. तो हम आए ही हैं इस धरती पे ताकि हम जान पाएं, और उस जानने के प्रोसेस में आपको उन हार्डशिप्स को भी सलाम करना पड़ेगा जो आपके ऊपर से आए हैं. तो स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू मी इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग योरसेल्फ एंड दिस एंटायर जर्नी ऑफ व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज रेलेवेंट. एक्चुअली राइट रॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब कुछ ही ठीक ही है, क्योंकि उसने आपको, एवरीथिंग इज मेंट टू बी, क्योंकि उसने आपको बनाया है. तो बिकॉज उसने आपको बनाया है, वो गलत कैसे हो सकता है? राइट. इफ somebody has faced a domestic violence, that creates that person. I'm not defending domestic violence, but उनके कार्मिक जर्नी में अगर वो था और वो उधर से उभरी हैं, कोई भी, आज अगर मैं किन्हीं की भी बात करूं,
तो वो उनकी जर्नी रही, अगर वो उनके साथ नहीं होता तो उभरती नहीं, एब्सोल्युटली। राइट? सो धक्का किसने मारा? धक्का किसने मारा? अब अगर वो धक्का आपको लगेगा नहीं तो कुछ और कोई और धक्का लगेगा। अगर आप इसके शिकार नहीं होंगे तो कुछ और होंगे। मैंने कई फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे बहुत ही कम्फी एटमॉस्फेयर में बच्चा बड़ा होता है, लेकिन ही at times thinks about committing suicide. What makes him do that? And I've seen many kids in the pipe. If you see a small child who lives in pipes and on the streets, they're so happy. They have in such a beautiful life condition. ये फर्क क्या है फिर? तो क्या abundance happiness देता है? नहीं. और एक जो दुखी, मतलब अगर एक बहुत ही बुरी परिस्थिति में है, क्या वो poor state of life में है, क्या वो खुश है? So ये again it's a very internal process. Yes. And उसको मेरे हिसाब से लगता है वो understanding spirituality है, जहाँ आप आपको खोजने की पहली attempt करते हो, वो spirituality. Right. I don't know if I'm right or wrong, but I just said it. There is no question of right and wrong. This is your perception. Everybody is unique. Everybody is individual. Absolutely. And there is nothing right and wrong. जी. I choose to live like this. This is me. Yeah. You choose to live like that. That is you. Absolutely. Ultimately तो हम सबको जहाँ से एक सोर्स से आए, एक सोर्स में जाना है वापस. So right. वो तो है, पर उसके बीच में हम क्या क्या अनुभव करते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे करते हैं, और कब तक अपनी जिद से कर सकते हैं और कब तक डिविनिटी के साथ सरेंडर करके करना चाहते हैं, जी. वो फर्क है. बिल्कुल. अगर वो हमने समझ लिया तो क्या चाहिए, तो फिर वो मजा है. Absolutely. वो अलग सुंदर, वो फिर ब्लिसफुल जीवन है, फिर उसमें मजा है. और कहीं ना कहीं आती चाहिए हम दोनों की ही जिंदगी में अभी इस पॉइंट पे वो शायद एक मंजर आ रहा है या आ गया है या हो रहा है, जहाँ हम इस परिस्थिति में हैं कि हमें पता है हम कहाँ हैं, और ये अपने आप में, और हमें क्या करना चाहिए ये पता है. हम वो करने ही की रही, वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है क्या करना चाहिए. कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मार्गदर्शन हमें मिल रही है. और इस वजह से नहीं 1000% मार्गदर्शन मिल रही है. मतलब एट टाइम्स तो आई फील दैट आई एम जस्ट फ्लोइंग, आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट डूइंग, दिस इज नॉट मी हु इज डूइंग. I am just sitting here. I'm just a medium. Yes. Physical body is here. Yes. But I am not doing this. Yes. ये जो मैं कर रही हूँ अभी आपके साथ में पॉडकास्ट भी शूट कर रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ. हाँ, ये बिल्कुल. साउंड कर सकता है किसी नॉर्मल इंसान को कि ये कैसे पागल जैसी बातें कर रही, पागल हो गई है क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हो गई हूँ, मैं जागृत हो गई हूँ. Absolutely. मुझे इस चीज की समझ है कि मेरी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, और मैंने जब नियंत्रण छोड़ दिया है तो मैं बहुत खुश हूँ. और इसका जो मजा है वो मैं आपके पास में देख रही हूँ, मेरे अंदर देख रही हूँ, इस सिचुएशन में देख रही हूँ, तो इसके लिए वो मजा आ रहा है. Absolutely. Yeah. क्योंकि हम अपने आप से निकल गए हैं जी. हम बहुत बड़े यूनिवर्सल प्रोसेस में घुस गए. और उस प्रोसेस में जब आप इंसान घुसता है तो उसको असल में समझ आता है कि ये मैं नहीं हूँ, कोई और है. तो हाँ, जैसे आरती जी की जागृति हुई है, आरती की जागृति इस तरह की उसी तरह का सबका की भी जागृति हुई है. जी जी बिल्कुल. So yeah, so that's the journey. You're right. Yes. Absolutely. Yes. Very beautiful conversation we had. Very beautiful experiences you shared. Lastly, what is happening right now with you? Right now. Just now. Just now? And what do you want to convey to the audience from your side? So right now, life is flowing on its own. There is not even an iota of effort from my end. It is becoming a ongoing, remote controlled, on its own flow. A flow that is blissful. एक ऐसा फ्लो जहाँ पे मुझे अनंत अलग अलग पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरों के साथ बहुत सारे विचार साझा करने चाहिए, जहाँ मुझे वो इनहिबिशन नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनसिक्योरिटी नहीं है कि मेरे पास क्या है,
और वो इल्यूजन नहीं है कि मेरे पास ये सब है. हाँ. उनमें से मैं थोड़ा सा निकल गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कई हद तक, कई तरीके से आई हैव apologized to all the things and elements that I have really hurt. And I have also, actually completely in every way मैंने उनको भी माफ़ कर दिया है जिन्होंने शायद मेरे साथ कुछ गलत किया हो. और ये मेरी अभी इस पॉइंट मेरी लाइफ कंडीशन है. Okay. और आने वाले दिनों में जो भी होगा वो भी पूरी तरीके से 110% दैविक पर्सपेक्टिव से होगा, डिवाइन पर्सपेक्टिव से होगा. उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा. तो वो जैसा चाहें वैसा करेंगे हम. Wow. So that's the life state. So beautiful. So beautiful. Thank you. It is. Loving it. Thank you so much. Would you want to say something to the audience? Yeah, I can. जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं. Absolutely. 2 बातें. एक तो ये कि करियर के कॉन्टेक्स्ट से मैं बता रहा हूँ कि हमारे आज के पीढ़ी को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कंफर्ट लेवल और स्ट्रेस में एक फ़र्क है. स्ट्रेस का मतलब मेहनत नहीं है. मेहनत तो करना है. स्ट्रेस तब होता है जब आप उस स्थिति में होते हो जहां आपको पता ही नहीं है और आप बहुत ही इल्यूजनरी स्टेट में होते हो और आप अननेसेसरीली प्रेशर में पड़ रहे हो. वो स्ट्रेस है. मेहनत को स्ट्रेस मत समझें. दैट इज फर्स्ट स्मॉल एडवाइस ऑफ माय एंड. मेहनत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ब्लिसफुल हो सकता है अगर वो सही डायरेक्शन में हो. दैट इज वन. सेकेंडली जो एक बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी कोई गलती हो रही है या आपने कोई गलती कर दी है या उसको गलत मत समझें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ में आपको वो कुछ सिखा के ही जाएगा. एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको सब समझ आएगा. तो अगर आज आप कुछ और समझ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपकी आखिरी समझ है. ये सब बदलेगा. एवरीथिंग विल अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज बिकॉज हम इस पूरे यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ही आए हैं. सो हम सब ट्रांसफॉर्म होंगे. तो जो आज है वही सत्य नहीं है और जो कल है वो असत्य नहीं था. सब कुछ सही है. बस आप फ्लो करिए और उस फ्लो के दौरान एक अच्छी मनोभाव के साथ फ्लो करिए. जो चीज़ आपके दिल को दुखाए और आपको खुद बुरा लगे वो आप मत करिए बिकॉज वो असल में अच्छा नहीं है. क्योंकि आपके अंदर जो डिवाइन है वो आपको कह रहा है कि वो आप मत करो. फिर भी अगर आप किसी चीज़ के फोर्स पे आके वो कर रहे हो तो वो फाइनली आपके लिए अच्छा नहीं होगा. तो बस इतना ही है कि जस्ट गो विद द फ्लो. Even if you do mistakes, tomorrow it will not remain mistakes. You'll be all fine. And transformation as a journey is a process. Don't think today whatever you're doing is not good and tomorrow it will all change. Finally, everything will be fine. Yes. It will all get sorted out. Yes. So that's my only Yes. 2 bits out of my own illusionary life or ignorant life that I've had. These are my 2 advices. और actually advice मैं आपको बताऊँ आरती जी, advice क्या ही दें बिकॉज मुझे तो लगता है कि सारे हम सब बहुत इवॉल्व हैं अपने अपने तरीके से. हमने एक आदमी जो ठेला चला रहा है वो भी इवॉल्व है और जो एक मल्टी बिलियनियर भी है वो भी इवॉल्व है. अपने अपने वर्ल्ड में सभी इवॉल्व हैं. सब जानते हैं कि सब क्या कर रहे हैं. जी. खाली वो क्या है ना, एक एक्नॉलेजमेंट होता है ना कि हाँ मुझे पता है कि मैंने ये गलत किया, ये मुझे नहीं करना है, मुझे करना है. खाली अपने आप के साथ में जो अग्रीमेंट है ना, जो अपने आप के साथ में ऑनेस्टी, उसका थोड़ा ट्यूनिंग खराब है. हाँ, क्योंकि हम एब्सोल्युटली और हम जो ये 2 बात कर रहे हैं ना, ये भी हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ बोलना है. ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को एक दैविक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग से ये बात आई है कि हमें बात करना चाहिए. और वो बहुत लार्जर कॉज के लिए है. ये कॉज ये नहीं है कि हम अपने आप के बारे में कुछ ज्ञान दे रहे हैं. इट्स नॉट दैट. आई थिंक इसको उस तरीके से देखना गलत होगा. ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ किसी इंसान को 10% भी टच करे तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. हम इसलिए कर रहे हैं. शायद हम अपने खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं मोर देन एनीथिंग एल्स. सो दैट्स दैट.
Thank you very much. It was beautiful talking to you. Likewise. And a great lesson for all of you कि एक व्यक्ति जो दिल्ली में एक छोटी सी अननोन सी जो पॉलिटिकल या जो भी एनवायरनमेंट था, जो भी जगह थी, वहाँ से अपने आप, अपने बलबूते पर, अपनी स्टेबिलिटी के साथ में, अपने थॉट और अपने कन्विक्शन के साथ में, अपने फोकस के साथ में, बम्बई जैसे शहर में आकर मेन स्ट्रीम इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में काम करके अपनी आइडेंटिटी बना रहा है, तो नेचुरली उनकी जो जर्नी है बहुत सुंदर है, आपके लिए इंस्पायरिंग है. आई होप कि हमारी जो बातचीत थी वो आपके जीवन में कुछ लाइट लेकर आए, आपको कुछ मार्गदर्शन दे और आप अपना जीवन का रास्ता सुंदर तरीके से ढूंढ पाए. आई होप डिविनिटी इज देयर विद इन यू विच गेट्स अवेकेंड एंड यू बिकम लव. Thank you very much for being with us. Taking your leave. Thank you. Thank you so much. Thank you.